Good morning, dear students. So far in this chapter, we have completed with various types of tissues as well as one organism we had considered, that was earthworm. In earthworm, we have discussed about different types of organ systems which were present and their functioning in earthworm. Now we are moving on to the second organism included in this chapter, and that is cockroach. This chapter you do not have to prepare, that is this topic of cockroach you do not have to prepare for the purpose of NEET examinations. Okay, so a very simple topic, that is the topic of the cockroach. Some of the things in the cockroach are very interesting to understand, right? And we also need to understand that how it is different than the systems from the earthworm. earthworm जो है वो एनिलिडा में बिलोंग करता है, जबकि कॉकरोच it belongs to arthropoda. So what are we trying to understand is that what is the differences in the phylums Annelida और Arthropoda है, तो दोनों में excretory system में या respiratory system में क्या changes होते हैं, क्या functioning different होता है, इसके बारे में हम इस topic में आगे बात करेंगे. So first, as usual, we have to start with the morphological characteristics of cockroach. But before that, let us have the introduction of cockroach. The cockroaches are the very common organisms that are even found at your homes. Okay, so first thing we need to mention is that cockroaches belong to the class Insecta and phylum Arthropoda. Cockroaches belong to class Insecta and phylum Arthropoda. You have to remember what was the special character of the phylum Arthropoda. These are the organisms with joint appendages. तो joint appendages जो है वो Arthropoda का सबसे important एक character है, ठीक है? Now if we talk about the color of cockroaches, they are usually brown or black color in the body. So brown or black body, राइट. बॉडी कलर इनका जो होता है वो यूजुअली डार्क ब्राउन होता है या तो थोड़ा ब्लैकिश टाइप होता है. बट इन ट्रॉपिकल रीजन्स वो दूसरे कलर्स में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि येलो, रेड और ग्रीन. ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं उनमें इनके थोड़े अलग कलर्स भी, थोड़ा स्लाइटली येलोइश कलर कॉकरोच या ग्रीन या थोड़ा बहुत रेडिश कलर के कॉकरोचेस भी देखने को मिलते हैं. सो डिफरेंट कलर्स ऑफ कॉकरोचेस आर ऑल्सो ऑब्जर्व. अगर हम कॉकरोच की जनरली साइज की बात करें, देन दीज कॉकरोचेस विल बी द साइज विल बी रेंजिंग फ्रॉम 1/4 इंचेस टू अबाउट 3 इंचेस. 1/4 से लेके 3 इंचेस तक, मतलब अबाउट 6 to 7 सेंटीमीटर्स के साइज के भी कॉकरोचेस होते हैं. सो साइज ऑफ कॉकरोचेस कैन बी वेरी स्मॉल ऑल्सो, एज वेल एज समवॉट 6 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉकरोचेस आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड. अगर हम कॉकरोचेस में, जब हम कॉकरोचेस की बात करते हैं तो हम उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं. दैट व्हाट इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ द कॉकरोच. तो कॉकरोचेस जो होते हैं उनमें हेड पार्ट, थोरैक्स पार्ट और एब्डोमेन पार्ट, ऐसे करके तीनों रीजन्स होते हैं. पर इनकी पूरी जो बॉडी होती है दैट इज फ्लैट, और उनके पास आईज, एंटीना, लेग्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. सो दे हैव प्रेजेंस ऑफ आईज, antenna, legs and the flat body extension conceals with the head. मतलब वैसे तो इनका हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन अलग होता है, पर ये जो बॉडी के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन होता है वो इस तरह अपीयर करता है कि हेड और थोरैसिक बॉडी एक ही है. वैसे तो इनके बॉडी पर एक पूरा ही
फ्लैट एक्सटेंशन रहता है और बॉडी ऑफ द कॉकरोचेस इज फ्लैट एंड द अपर पार्ट विल बी कंसीलिंग द हेड. कंसीलिंग मतलब you cannot separate out head and thorax when you are just observing a cockroach. You will feel that it is a continuous layer. Okay, तो यहाँ पे cockroaches जो होते हैं उनके पास eyes, antenna, legs ये सारे structures होते हैं. साथ साथ में उनकी जो body है that is going to conceal with the head part also, so it appears to remain connected only, but actually these segments are distinct. Okay. Now another thing is that in the structure of cockroaches, an important thing to understand is that cockroaches are very serious pests as well as they are vectors of several diseases. So cockroaches जो होते हैं वो नुकसान भी इतना करते हैं, right? फूड को खराब करते हैं, right? क्लोथ्स खराब कर सकते हैं. So they are serious pests also and found in damp places. Where are they found? They are found in the damp places and they are vectors of several diseases. मतलब कई diseases के जो carriers होते हैं वो cockroaches होते हैं. They bring on different types of bacteria and other organisms to your food and they will be making your food spoiled and that would be reason for several diseases. तो vectors मतलब carriers, ये carry करते हैं कई disease causing organisms को भी. Now we talk about the morphology of the cockroach. So when we talk about morphology of cockroach, we first need to understand the most common species of cockroach found is Periplaneta americana. Periplaneta americana is a common species of cockroach that is found. Okay, तो सबसे common है Periplaneta americana. अगर उसकी size की बात करें तो it is about 34 to 53 millimeters in its size. ये उसकी size की बात हो गई. अगर हम कॉकरोचेस की बात करें तो उनके ये जो मेल्स में ये जो विंग्स होते हैं दे आर एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द एब्डोमेन. हमने कहा कि कॉकरोचेस में हेड होता है, थोरैक्स होता है जो कंसील हो जाता है और एब्डोमेन होता है. तो इनके मेल कॉकरोचेस और फीमेल कॉकरोचेस सेपरेट होते हैं. मतलब दे आर नॉट हर्मेफ्रोडाइट्स दिस टाइम, राइट? सेक्सेस आर सेपरेट. तो सेपरेट सेक्सेस जो होते हैं उनमें मेल्स को अगर डिमार्केट करना हो देन यू कैन ऑब्जर्व द विंग ऑफ द कॉकरोच. द विंग्स ऑफ द कॉकरोच ऑफ द मेल कॉकरोचेस विल बी एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द रीजन ऑफ द एब्डोमेन. सो in males the wings extend beyond the एब्डोमेन, राइट? तो ये मेल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है क्योंकि मेल्स में ये जो विंग्स हैं वो एब्डोमेन से भी ज्यादा लंबे तक एक्सटेंड होते हैं. ठीक है. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू बॉडी ऑफ कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. ठीक है. तो यहाँ पे हम जो ट्राइंगुलर शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज द हेड पार्ट, राइट? इट इंक्लूड्स द एंटीरियर रीजन ऑफ द आईज. तो ये जो पूरा ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर जो है एंटीरियर में दैट इज द हेड पार्ट ऑफ द कॉकरोच. हियर यू कैन सी द प्रेजेंस ऑफ द कंपाउंड आईज. कॉकरोचेस की आईज जो होती है वो थोड़ी अलग तरह की होती है एंड दे आर नॉट सिंपल आईज. हमारी आईज जो है वो जो भी ऑब्जेक्ट देखती है उसकी एक ही इमेज बनती है, जबकि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे फॉर्म मल्टीपल इमेजेस ऑफ व्हाट दे सी. इसीलिए उनकी आईज जो है दैट इज डिफरेंट. इट इज कॉल्ड कंपाउंड आईज. इसके अलावा द इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स दैट यू कैन सी ऑन द आइदर साइड्स दीज आर द एंटीना ऑफ द कॉकरोच. एंटीना जो होते हैं वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. दे आर सेंसरी इन देयर फंक्शन. मतलब कॉकरोच में एक सेंसरी ऑर्गन में एंटीना इंक्लूड होता है. ठीक है. फिर ये जो पोर्शन है हेड के बाद, तो हेड के साथ ही यहाँ
पे एसोसिएटेड है थोरैक्स, और थोरैक्स के होते हैं 3 सेगमेंट, जिसमें से पहला जो रीजन होता है उसे कहते हैं प्रोथोरैक्स, जो हेड के साथ कंसील हो जाता है। द रीजन ऑफ प्रोथोरैक्स इज मर्ज्ड विद द पार्ट ऑफ द हेड पार्ट ओनली, ओके, और उस सेगमेंट को कहा जाता है प्रोथोरैक्स। उसके बाद जो जो सेगमेंट्स हैं, these are known as mesothorax and the third one that is metathorax। मतलब मैं आई एम ट्राइंग टू से दैट थोरैक्स के कितने सेगमेंट है? 3, पर जो प्रोथोरैक्स है दैट इज कंसील्ड विद द हेड ओनली, दैट विल बी फॉर्मिंग अ नेक पार्ट। जो प्रोथोरैक्स होता है वो कॉकरोच का नेक रीजन फॉर्म करता है। फिर आता है मिजोथोरैक्स और फिर आता है मेटाथोरैक्स। और हर एक थोरैसिक सेगमेंट में से देयर इज डेवलपमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग, मतलब one pair will be developing from prothorax, mesothorax and metathorax। ऐसे करके 3 pairs of walking legs होते हैं। उसके अलावा मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में से विंग्स भी डेवलप होते हैं। ये है फोर विंग्स और ये है हिंड विंग्स। और जब भी ये जो फोर विंग्स होते हैं दे आर नोन बाय अ स्पेशल नेम दैट इज कॉल्ड टेगमिना। फोर विंग्स जो होते हैं उन्हें कहा जाता है टेगमिना, और ये है हिंड विंग, ओके। और ये जो आप देख रहे हो दैट इज पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। लेग्स में भी ऐसा होता है, प्रोथोरैसिक लेग, मेसोथोरैसिक, मेटाथोरैसिक। मतलब प्रोथोरैसिक लेग इमर्जेस फ्रॉम प्रोथोरैक्स, और ये कौन सी साइड पे होते हैं? वेंट्रल साइड पे। मतलब अगर ऐसे कॉकरोच है तो वेंट्रल साइड से लेग्स इमर्ज होंगे, ठीक है। Another thing is that this whole region, ये जो पीछे के जो segments हैं, that will be the whole part of abdomen. Abdomen is made up of 10 segments. 10 segments का होता है ये abdomen. और ये जो छोटे elevated structures हैं, anal cerci कहा जाता है। और anal cerci जो है, it is also sensory structure. मतलब जैसे कि यहाँ पे antenna is a sensory organ, eyes are a sensory organ, same way anal cerci is also a sensory organ, okay। So that is certain labelings which you have to remember in the structure of the frog. Another thing is, now we first when we have said that head, thorax and abdomen है, तो कॉकरोच की जो पूरी बॉडी होती है, this whole body will be covered by a chitinous exoskeleton. The body is covered by a chitinous exoskeleton। chitinous मतलब काइटिन से बना हुआ, राइट। जो फंगल प्रोटीन, फंगल होता है ना, फंगस में भी काइटिन होता है, कार्बोहाइड्रेट, वैसे ही यहाँ पे chitinous exoskeleton होता है। एंड दिस exoskeleton is known as, the chitinous exoskeleton is known as sclerites। क्या कहते हैं? sclerites। बॉडी ऑफ कॉकरोच अगर आप पूरे ऊपर से देखोगे तो शाइन पूरा होता है, राइट। तो वो ऊपर एक काइटिन का बना हुआ एक पूरा लेयर है, इस लेयर को कहते हैं sclerites। पर dorsally they are known as tergites and ventrally they are known as, मतलब tergites जो है वो डॉर्सल साइड पे टर्गा और वेंट्रल साइड पे स्टर्ना, सो स्टर्नाइट्स, राइट। मैं क्या कह रही हूँ कि अगर ये कॉकरोच है तो पूरे ही एक्सोस्केलेटन को क्या कहते हैं? स्क्लेराइट्स कहते हैं। पर ये पूरा जो एक्सोस्केलेटन है उसमें डॉर्सल साइड को टर्गा कहते हैं और वेंट्रल साइड को स्टर्ना। मतलब डॉर्सली द कॉकरोच इज कवर्ड बाय टर्गाइट्स, वेंट्रली इट इज कवर्ड बाय स्टर्नाइट्स, एंड लेटरली भी नाम है जिसे कहते हैं प्लूराइट्स। तो टर्गा, स्टर्ना एंड प्लूरा आर द 3 exoskeletons that are present in the body of the on the body of the cockroach. Moreover, ये जो segments मतलब ये जो पूरा chitinous exoskeleton है that is arranged in the form of hard plates. They are arranged in the form of hardened
प्लेट्स, हार्ड प्लेट्स के फॉर्म में ये अरेंज्ड होता है एंड हर एक प्लेट के बीच में एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है एंड द फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन between the plates is known as articular or arthrodial membrane. आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन, क्योंकि अगर पूरा ही हार्ड लेयर होता तो कॉकरोच का ऊपर का पूरा ही लेयर मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं होती, इसलिए ये जो है वो एक्चुअली ऐसे प्लेट्स की फॉर्म में अरेंज है। तो प्लेट है ये और बीच में क्या होगा, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। अगेन देयर इज अ हार्ड प्लेट, अगेन देयर इज आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, अगेन देयर इज अ हार्ड प्लेट, अगेन देयर इज आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। तो ये जो आर्टिकुलर मेम्ब्रेन है उसका मीनिंग ही ये होता है टू प्रोवाइड समवॉट फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी, अदरवाइज पूरी बॉडी क्या होती, एकदम सॉलिडिफाइड ही हो जाती, राइट। पर यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि कॉकरोच की बॉडी पे जो एक्सोस्केलेटन है, इस एक्सोस्केलेटन को कहते हैं स्क्लेराइड्स। क्या कहते हैं एक्सोस्केलेटन को? स्क्लेराइड्स। यही स्क्लेराइड्स को डोर्सल साइड पे टर्गा और वेंट्रल साइड पे स्टर्ना कहा जाता है। मींस एक्सोस्केलेटन ऑन डोर्सल साइड इज टर्गाइड्स, on ventral side is called sternites. Okay, and this exoskeleton is arranged in the form of plate-like structure, and these plates will be connected by a flexible membrane. This flexible membrane between the plates is known as articular or arthrodial membrane. Okay, so in the cockroach morphology you have to remember they belong to class Insecta. Phylum is Arthropoda. मोस्टली इनका कलर ब्लैक या ब्राउन होता है, बट समटाइम्स येलो, ग्रीन या रेड कलर के भी देखने को मिलते हैं। इनकी साइज 1/4 से लेके 3 इंच तक होती है एंड दे हैव प्रेजेंस ऑफ आईज, एंटीना, और उनकी जो पूरी बॉडी होती है दैट इज कंसील्ड विद द हेड पार्ट। दे ऑल्सो हैव प्रेजेंस ऑफ द लेग्स। ओके, कॉकरोचेस आर मेनली रेसिडेंट्स ऑफ अवर होम्स, हमारे घर में ही रहते हैं। इसके अलावा डैम्प प्लेसेस पे रहते हैं, फार्म्स में भी होते हैं वेयर दे एक्ट एज पेस्ट, और उसके अलावा दे आर मेनली कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ सेवरल डिसीजेस। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो कॉमन स्पीसीज है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। 34 to 53 मिलीमीटर्स इज द साइज ऑफ द कॉकरोच एंड मेल्स जो होते हैं उनके विंग्स दे एक्सटेंड बियॉन्ड द एब्डोमेन, एब्डोमेन से भी आगे एक्सटेंड करते हैं। बॉडी जो है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन ऐसे 3 सेगमेंट्स होते हैं। उसमें से पूरी बॉडी पे होता है एक्सोस्केलेटन जिसे कहते हैं स्क्लेराइड्स, डॉर्सली टर्गाइड्स, वेंट्रली स्टर्नाइड्स, लेटरली प्लूराइड्स, एंड they have presence of the articular membrane between each hardened plates, and that is the diagram for the cockroach. In the next class we will start with the further morphology of head part, thorax part and the abdomen part of cockroach.